evening to all. Namaskar. Good evening to all honorable eminent guests on dais as well as off the dais, and all those who are attending this program live on IGNCA YouTube channel and IGNCA Facebook Live. It is indeed a great pleasure for me to provide a brief overview of the program. We all have gathered today for three very important programs. The launch of exhibition of Geet Govind, which Honorable Union Minister for Culture, along with Honorable Minister for State for Culture and our guest of honor, Dr. Sonal Mansi, in the presence of our Honorable President and Member Secretary IGNCA, has just inaugurated few minutes before. We are going to have the launch of a book on Geet Govind, written by Dr. Utpal K. Banerjee. The book on Geet Govind is based on the collections, 43 visuals from slide unit of Kalanidhi Cultural Archive of IGNCA. And as the author, Dr. Banerjee, who has been associated with the IGNCA since long, he was instrumental in 90s in launching the multimedia project at IGNCA. He is a very eminent scholar and a person who has received Padam Shri for his work. Because of bad health and some personal loss in his family, he is not able to make it. He has sent a video message. The second important program of launch in this hall today, we are going to see a program conceptualized by Ministry of Culture. बुजुर्गों की बात देश के साथ, Honorable Minister and other dignitary will launch that program also. As you know, Kalanidhi Division of IGNCA is a cultural resource center. It's an academic hub of activities at IGNCA with a print library with a special unique collection of 24 eminent personal libraries of scholars like Dr. Suniti Kumar Chatterjee, Acharya Hajari Prasad Dwivedi, Shyam Benegal, Thakur Jaidev Singh, Dr. Kapila Vasyan, Devendra Swarupji, and so. We also have a very eminent collections in the Cultural Archive with 45 personal collections. And this slide unit, we have more than 100,000 visuals on different aspects of Indian culture and traditions. And besides that, at IGNCA, we also ensure the preservation of and access to documentary heritage of India globally through various programs like UNESCO Memory of the World program. And also, we have been participating in the UNESCO, recently launched an UNESCO program because UNESCO is celebrating International Decade of Indigenous Languages. So with all these activities and programs, Kalanidhi Resource Center is one of the largest cultural, and most of these collections have been digitized. And we have other publications, series of publication, and I'm sure with this today's book launch, more details you will see, and the program is being presided over by our Honorable President IGNCA Trust. And I will not take more time because we have many speakers to speak. I just want to thank you for all your assembling here, and also I would like to request our Member Secretary Dr. Sajiran Joshi ji to deliver the welcome address. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रमेश गौर। भारत के संस्कृति, पर्यटन और डोनर मिनिस्टर माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, भारत के संस्कृति राज्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के माननीय अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी, और गीत गोविंद की इस समय देश की सबसे बड़ी विदुषी, पद्म विभूषण राज्यसभा सदस्य और हमारी माननीय ट्रस्टी डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय देवियों और सज्जनों, मैं देख रहा हूं कि कला और संस्कृति के क्षेत्र की कई नामी गिरामी हस्तियां आज हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रद्धेय अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब जो जयपुर से आते हैं, नाभा जी जो इम्फाल मणिपुर से आते हैं वो भी बैठे हैं, रमा पांडे जी हैं, रंजना गौहर जी हैं, प्रतिभा प्रहलाद जी हैं,
उस्ताद वसीफुद्दीन डागर साहब हैं, शक्ति सिन्हा जी हैं, मैं नाम लेता चला जाऊंगा, और शुभेंदु राव जी हैं, प्रोफेसर जगदीश कुमार वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ऐसी तमाम हस्तियां कला और संस्कृति, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र की आज इस सभागार में उपस्थित हैं। और हाँ, आज हम सब गौरवान्वित हैं। ये अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब इस भवन का उद्घाटन हुआ था तब कोरोना के रेस्ट्रिक्शन के कारण हम बहुत सारे लोगों को आमंत्रित नहीं कर पाए थे, और बहुत लोगों ने इस बात की शिकायत की थी कि आपने हमें आमंत्रित नहीं किया। लेकिन चूंकि इस सभागार में सिर्फ 50 लोगों के बैठने की अनुमति थी, इसलिए बाकी प्रोग्राम हमारे सभी सम्माननीय कलाकारों ने, माननीय कलाकारों ने लाइव देखा था। आज अवसर था तो हमने सोचा कि आज हम आप सबको यहाँ पर आमंत्रित कर लें। और ये सुयोग भी है क्योंकि गीत गोविंद इस पुस्तक का आज यहाँ लोकार्पण हो रहा है। हम जानते हैं आदरणीय उत्पल बनर्जी साहब द्वारा गीत गोविंद इस पुस्तक की रचना हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने गीत गोविंद पर एक बहुत विस्तृत प्रोजेक्ट भी किया था, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोजेक्ट है। वो भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आपके सामने उपलब्ध है। और हमारे आर्काइव्स में बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग्स हैं गीत गोविंद की। तो वो सारी गीत गोविंद की जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, जो पिछवाई है, वो सब हमने यहाँ पर आपके लिए डिस्प्ले की हैं। एक सुंदर सी पिछवाई आपके पीछे भी है, ये भी IGNC आर्काइव की पिछवाई है। और हमने पिछवाई पर कुछ वर्कशॉप भी किए ताकि नए से नए कलाकार भी पिछवाई के इस क्षेत्र में आगे आ सके। हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि गीत गोविंद इस पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, और उसके लिए स्वयं कृष्ण यहाँ पर उपस्थित हैं। जी किशन रेड्डी जी स्वयं कृष्ण के रूप में गीत गोविंद का यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और इसीलिए मैं सोच रहा था कि कैसे भी हो मैं उनको मनाऊं कि वे इस लोकार्पण के कार्यक्रम में उपस्थित हों। और आज ये मंच और समृद्ध हो जाता है जब कृष्ण और अर्जुन दोनों एक स्टेज पर होते हैं। मुझे लगता है कि ये एक मणिकांचन योग है जब कृष्ण और अर्जुन दोनों इस मंच पर उपस्थित है, और साक्षात राम भी हैं। तो इसलिए ये मंच आज मुझे लगता है कि पूर्ण देवत्व से समृद्ध एक मंच है। और कला संस्कृति के क्षेत्र में जो भी कुछ अच्छा हम सोच सकते हैं, जो भी कुछ अच्छा हम कर सकते हैं, उसके लिए संभवतः ईश्वर आज की इस बेला में स्वाहा स्वाहा कर रहे होंगे। तो इसलिए हमें आज ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। इस सभागृह में श्रेष्ठतम गुरुजनों से समृद्ध आज का ये सभागृह, मैं आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूँ। पुस्तक के विषय में मैं बहुत अधिक नहीं कहता क्योंकि पुस्तक अपने आप में सारी बातें कह देती हैं, और गीत गोविंद के विषय में भी कुछ कहने की मेरी पात्रता नहीं है उस मंच पर जहाँ विदुषी सोनल मान सिंह जी बैठी हों। एक और कार्यक्रम आज हम यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसके बारे में थोड़ी सी भूमिका मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 2 वर्ष तक हम अलग अलग कार्यक्रम करने वाले हैं। अभी 15 अगस्त को हमने राष्ट्रगान संयुक्त रूप से गाने का एक उपक्रम किया था राष्ट्रगान.in इस वेबसाइट के माध्यम से। 15 अगस्त तक लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने उस पर अपने राष्ट्रगान अपलोड किए थे, जो अपने आप में एक वैश्विक कीर्तिमान है। और अभी ताज़ा जानकारी तक 2,65,00,000 लोग उस पर अपना राष्ट्रगान अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मेरा आग्रह है कि आप ज़रूर अपना राष्ट्रगान उस पर अपलोड कीजिए। ये एक महत्वपूर्ण अवसर था जब हमने देश के हर क्षेत्र के लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव से जोड़ने का काम किया, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जहां हमें लगा कि हमें निश्चित तौर पर कुछ करना चाहिए, और वो था हमारे बुजुर्गों का क्षेत्र। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 95 वर्ष से अधिक की आयु के अभी भी समाज में हैं। निश्चित तौर पर ये वो पीढ़ी है जिसने भारत की गुलामी भी देखी है और भारत की आज़ादी भी देखी है, और लगभग 75 साल उन्होंने आज़ाद भारत में बिताए हैं, लेकिन जीवन के 18 महत्वपूर्ण साल उन्होंने गुलाम भारत में भी बिताए हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमें हमारे अनसंग हीरोज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, अनसंग हीरोज़ को चिन्हित करके हमें उनका सम्मान करना चाहिए, तो संस्कृति मंत्रालय ने ये सोचा कि बहुत सारे बुजुर्ग जिनका नाम किसी इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने भी तो अपने अपने स्तर पर आज़ादी के संघर्ष में कहीं ना कहीं भाग लिया होगा। हमने कोशिश की है कि हम उन बुजुर्गों के साथ बात करें, और आज हम ये कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं, बुजुर्गों की बात देश के साथ। हम देश के तमाम उन युवाओं को आह्वान कर रहे हैं कि वे सभी युवा जाएं और अपने इर्द गिर्द
समाज में ऐसे बुजुर्ग जो 95 वर्ष से अधिक की आयु के हैं, यानी जिन्होंने गुलाम भारत में कम से कम 18 साल बिताए हैं, उनके पास जाएं, उनका एक वीडियो मैसेज लें, पूछें उनसे कि उन्होंने इस आज़ाद भारत में क्या नई बात देखी है, गुलाम भारत से उन्हें क्या फ़र्क हुआ है और इस देश से अब उन्हें क्या अपेक्षा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उन्हें 2047 का भारत देखना है, यानी जब 100 वर्ष का भारत आज़ाद होगा तो कैसा होगा, ये युवाओं को सोचना समझना है, तो निश्चित तौर पे उस समय हमारे इन बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनका स्नेह हमें बहुत काम आएगा, मार्गदर्शन देगा। इसलिए बुज़ुर्गों की बात देश के साथ इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का आज शुभारंभ माननीय मंत्री जी के हाथों होगा। मैं इस सभागृह में आप सभी सम्माननीय देवियों सज्जनों का, हमारे दोनों मंत्री द्वय का, हमारे माननीय अध्यक्ष का, हमारी माननीय ट्रस्टी विदुषी सोनल मान सिंह जी का और इस सभागार में उपस्थित आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, नाम के अनुरूप बहुत सुंदर तरीके से अपनी बातों को डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी ने हमारे बीच रखा। Now it's the right time for the felicitation of the guest. Now I request President of IGNCA, Shri Ram Bahadur Rai ji, to felicitate Shri G. Kishan Reddy ji, Honorable Union Minister of Culture, Tourism and Development of North Eastern Region, Government of India. I think huge round of applause. अपने बड़ों का अभिनंदन, साथ साथ विनम्र अनुरोध डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से, मेंबर सेक्रेटरी। आप देखिए कि शब्दों को शब्दों से जोड़ा जाता है, गीत गोविंद हैं तो राधा कृष्ण यहाँ पर विराजमान हैं। Now I request Dr. Sachchidanand Joshi ji, Member Secretary IGNCA, to felicitate Shri Arjun Ram Meghwal Sir, Honorable Minister of State for Parliamentary Affairs and Culture, Government of India. जोरदार तालियां आप सबके हाथों से। पुनः डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से विनम्र अनुरोध, जो मेंबर सेक्रेटरी IGNCA हैं, कि वे डॉक्टर सोनल मान सिंह, जो पद्म विभूषण पुरस्कार से स्वयं पुरस्कृत रही हैं, ऑनरेबल MP राज्यसभा हैं, उनको हम सब की तरफ से एक बार जोरदार तालियों के बीच मेरा पुनः अनुरोध, मंच पर जितने भी आसीन अतिथि हैं, my humble request is with all of them to launch the book गीत गोविंद, जयदेव डिवाइन ओडिसी। और मुझे लगता है अब तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए जिस बात के लिए हम और आप यहाँ जुड़े मिले, उस खूबसूरत बुक का यहाँ लॉन्च किया जा रहा है। और जिन्होंने एग्जीबिशन नहीं देखी है तब तक बजाइए, लिखने में और पेन उठाकर इतनी खूबसूरत किताब लिखने में बड़ा लंबा वक्त लगता है, और शायद हम अपने सारे इमोशंस जी बहुत सुंदर माहौल। आइए आगे बढ़ते हैं, अब उनसे आशीर्वाद लेते हैं जिनके आशीर्वाद के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। I request our guest of honor, Dr. Sonal Man Singh ji, Padma Vibhushan, Honorable MP